Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum students. Today we are going to discuss the properties of normal distribution from chapter number 14, normal distribution. Properties of normal distribution. These properties are very important. It is unimodal bell-shaped distribution. Being a symmetrical distribution, its mean, median and mode are equal, and these are equal to mu. Normal distribution has maximum ordinate at x is equal to mu, and its value is y is equal to 1 over sigma under root 2 pi. जैसा कि हमारे पास डेंसिटी फंक्शन है नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन का f of x या y is equal to 1 over sigma under root 2 pi e raised to power minus half x minus mu over sigma whole square. और जब x को हम म्यू के इक्वल पुट करते हैं तो e की पावर क्या आ जाती है हमारे पास, म्यू माइनस म्यू 0 हो जाएगा, तो e की पावर हमारे पास 0 आ जाती है विच इज़ इक्वल टू 1. तो हमारे पास ये फंक्शन जो है वो बाकी रह जाता है. ठीक है. व्हेन ऑर्डिनेट x इज इक्वल मैक्सिमम ऑर्डिनेट x इज इक्वल टू म्यू, then it is equal to 1 over sigma under root 2 pi. The total area or probability under the curve is unity or equal to 1. In this curve of the distribution, mu plus minus sigma contains approximately 68.27% area. Mu plus minus 2 sigma contains approximately 95.45% area. Mu plus minus 3 sigma contains approximately 99.73% area. The range of normal distribution is from minus infinity to plus infinity. All the odd order moments about mean are 0. That is mu1 is equal to mu3 is equal to 0. यानी odd order moments जितने भी हैं mu1 है, mu3 है, mu5 है up to so on, वो सारे equal to 0 होंगे. Even order moments about mean are exist, and these are equal to mu2 is equal to sigma square. यानी second moment about mean is equal to variance, and mu4 is equal to 3 mu2 square, and it is mu2 जो है वो sigma square के equal है, तो ये equal हो जाएगा 3 sigma raised to power 4. Moment ratios of normal distribution are beta 1 or b1 is equal to mu3 square divided by mu2 cube. जबकि mu3 जो है ऑड ऑर्डर मोमेंट है और ये इक्वल टू 0 होगा, तो ये सारी टर्म b1 जो है ये इक्वल टू 0 हो जाता है. क्योंकि ये सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन है, तो सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन में जो b1 है वो 0 होगा. b1 किसको शो करता है, स्क्यूनेस को शो करता है. ठीक है. तो b1 क्या है, 0 होगा. कि स्क्यूनेस 0 होगी तो डिस्ट्रीब्यूशन क्या होगी, सिमेट्रिकल होगी. इसी तरह से बीटा 2 इट इज़ इक्वल टू b2 भी इसको लिखते हैं, बीटा 2 से भी इसको डिनोट करते हैं. ठीक है. एंड इट इज़ इक्वल टू 3 mu4 डिवाइडेड बाय mu2 स्क्वायर के इक्वल है. ठीक है. mu2 हमारे पास mu4 जो है वो किसके इक्वल है, 3 सिग्मा रेस टू पावर 4 के. हमने वो वैल्यू यहाँ पे लिख दी. और mu2 किसके इक्वल है, वेरिएंस के, सिग्मा स्क्वायर के. तो सिग्मा स्क्वायर का स्क्वायर हो जाएगा. ठीक है. तो सिग्मा 4 हो जाएगा और सिग्मा 4 से कैंसिल हो जाएगा. तो यहाँ b2 इक्वल टू 3 आ जाएगा. ठीक है. अब b2 किसको शो कर रहा है, ये कर्टसिस को शो करता है. ठीक है. तो जब
B2 इक्वल टू 3 होता है तो जो कर्व होता है वो मीजोकर्टिक होता है और उसको सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन हम कहते हैं। ठीक है, तो कर्व इज मीजोकर्टिक विच आर कंडीशंस फॉर सिमेट्री एंड normality B1 and B2. B1 is equal to 0, B2 is equal to 3 are the conditions for symmetry and normality. The first and third quartiles are equidistant from mean or median. That is Q3 minus mu is equal to mu minus Q1. The three quartiles of the normal distribution are Q1 is equal to mu minus 0.6745 of sigma and Q2 is equal to mu. Q3 is equal to mu plus 0.6745 of sigma और mu जो है ये equal होगा Q1 plus Q3 divided by 2. It has 2 points of inflection which are equidistant from mean that occur at mu minus sigma and mu plus sigma. ये क्या है, म्यू माइनस सिग्मा और म्यू प्लस सिग्मा, इनको पॉइंट्स ऑफ इन्फ्लेक्शन कहते हैं। पॉइंट्स ऑफ इन्फ्लेक्शन आर द पॉइंट्स वेयर द कर्व चेंजेस इट्स डायरेक्शन। ठीक है, in normal distribution mean deviation is equal to 0.7979 of sigma and it is approximately equal to 4 by 5 of sigma, and quartile deviation is equal to 0.6745 of sigma and it is approximately equal to 2 divided by 3 of sigma. Normal frequency distribution. The normal frequency distribution is obtained by multiplying the normal probability density function by the total number of observations. That is, n is equal to summation f and it is equal to Fe. Fe shows the expected frequencies and these are equal to n into f of x. यानी जो भी f of x होगा उसको n से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगी, नॉर्मल फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। और एफ ऑफ एक्स क्या है हमारे पास नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन का, इट इज इक्वल टू 1 ओवर सिग्मा अंडर रूट 2 पाई ई रेस टू पावर माइनस हाफ एक्स माइनस म्यू ओवर सिग्मा होल स्क्वायर। Now example 14.1 from your book on page 125. बहुत ही इम्पॉर्टेंट हैं ये सारी एग्जांपल्स जो हैं, ये पेपर में आ भी चुकी हैं और आती हैं इस तरह के क्वेश्चन जो हैं, तो इसको बहुत अच्छे तरीके से आपने करना है। 14.1 एग्जांपल है, इन अ नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन द मीन एंड स्टैंडर्ड डेविएशन आर 20 एंड 5 रेस्पेक्टिवली। फाइंड नंबर 1 द मीन डेविएशन एंड द क्वार्टाइल डेविएशन। ठीक है, अभी हमने प्रॉपर्टी में पढ़ा है कि मीन डेविएशन जो है वो किसके इक्वल है, 0.7979 ऑफ सिग्मा। ठीक है, सिग्मा यहाँ पे कितना दिया हुआ है, 5 दिया हुआ है, म्यू की वैल्यू कितनी है, 20 है क्वेश्चन में। ठीक है, ये हमें गिवन है। तो हम क्या करेंगे कि मीन डेविएशन में जो कि इक्वल है 0.7979 ऑफ सिग्मा, तो सिग्मा की वैल्यू पुट करेंगे और 0.7979 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास मीन डेविएशन आ जाएगा 3.989 आर इक्वल टू अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू 4। ठीक है, ये हमारे पास मीन डेविएशन आ जाएगा। सेकंड हमने फाइंड करना है क्वार्टाइल डेविएशन, और क्वार्टाइल डेविएशन जो है इट इज इक्वल टू 0.6745 ऑफ सिग्मा। 0.6745 और सिग्मा की जगह आपने उसकी वैल्यू पुट करेंगे 5, तो हमारे पास क्वार्टाइल डेविएशन आ जाएगा 3.3725 और इट इज़ अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू 3.4। ठीक है, ये शॉर्ट क्वेश्चंस में आते हैं इस तरह के क्वेश्चंस। 14.2 एग्जाम्पल, द स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ अ नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन इज 4। फाइंड इट्स फर्स्ट 4 मोमेंट्स अबाउट द मीन। ठीक है, अब आपको
सिग्मा बताया हुआ है, स्टैंडर्ड डेविएशन सिग्मा इज इक्वल टू 4। तो आपने फाइंड क्या करनी है, इसकी फर्स्ट 4 मोमेंट्स आपने फाइंड करनी है। ठीक है, अब आपको पता है कि μ1 μ3 ये जो हैं ये ऑड ऑर्डर मोमेंट्स ये तो ज़ीरो के इक्वल होती हैं। ठीक है, तो हमने फाइंड अब कौन सी करनी है, μ2 μ4। ठीक है, μ2 जो है ये हमें पता है कि इट इज़ इक्वल टू, अभी हमने प्रॉपर्टीज़ में ये पढ़ा है कि μ2 जो है वो वेरिएंस के इक्वल होता है। सेकेंड मोमेंट अबाउट मीन इज इक्वल टू सिग्मा स्क्वेयर आर वेरिएंस। ठीक है, तो μ4 जो है वो किसके इक्वल है, 3 μ2 स्क्वेयर, और ये इक्वल हो जाएगा 3 सिग्मा रेज टू पावर 4। अब सिग्मा हमें क्या दिया हुआ है, 4 दिया हुआ है, तो हम यहाँ पे सिग्मा की वैल्यू पुट कर देंगे। μ2 जो है वो सिग्मा की जगह 4 आ जाएगा और उसका स्क्वेयर, तो μ2 हमारे पास आ जाएगा 16, और μ3 जो है वो ऑड ऑर्डर मोमेंट है वो इक्वल टू 0 होगा, μ1 भी 0 होगा ऑड ऑर्डर मोमेंट, और μ4 की वैल्यू 3 सिग्मा रेज टू पावर 4 है, तो सिग्मा की जगह उसकी वैल्यू पुट कर देंगे जो कि इक्वल टू 4 है। तो ये हमारे पास आंसर आ जाएगा μ4 का 768। Next example is 14.3. This is also important. If f of x is equal to k e raised to power minus x square minus 12x plus 36 divided by 32 is the equation of a normal curve. Find k, second है the mean and standard deviation of x. ठीक है, अब मीन और स्टैंडर्ड डेविएशन भी इसमें बताना है, और फर्स्ट आपने के की वैल्यू फाइंड करनी है जो डेंसिटी फंक्शन में हमें गिवन है। इसमें हम देखेंगे कि डेंसिटी फंक्शन ऑफ नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स 1 ओवर सिग्मा अंडर रूट 2 पाई ई रेज टू पावर माइनस हाफ एक्स माइनस म्यू होल स्क्वायर। ठीक है, इसके इक्वल है, या फिर हम इसको लिख सकते हैं 1 ओवर सिग्मा अंडर रूट 2 पाई ई रेज टू पावर माइनस एक्स माइनस म्यू होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2 सिग्मा स्क्वायर। इसको इस तरह से भी लिखा जा सकता है। ठीक है, इसको हमने इक्वेशन नंबर 1 कह दिया। नेक्स्ट जो इक्वेशन हमें गिवन है उसको हम इस तरह से लिख सकते हैं, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू के ई रेज टू पावर माइनस एक्स स्क्वेयर माइनस 12x प्लस 36 डिवाइडेड बाय 32। तो इसको हम लिख सकते हैं के ई रेज टू पावर माइनस एक्स माइनस 6 होल स्क्वेयर। देखें एक्स माइनस 6 का जब हम होल स्क्वेयर खोलते हैं तो हमारे पास इसी के इक्वल आता है, एक्स स्क्वेयर माइनस 12x प्लस 36 के इक्वल आता है। ठीक है, तो हम इसको कह सकते हैं कि दिस इज द स्क्वायर ऑफ x माइनस 6। ठीक है, तो इसको इस तरह से लिख लेंगे, 2 इंटू सिग्मा की जगह उसकी वैल्यू पुट कर देंगे। सिग्मा यहाँ पे कितना है, सिग्मा है हमारे पास 4, सिग्मा 4 गिवन है। ठीक है, यहाँ पे 32 है, तो 2 सिग्मा की अगर स्क्वायर ले लें तो 16 आ जाएगा, 16 2 ज़ 32। तो सिग्मा जो है उसकी पावर हम 2 सिग्मा हम 4 इसमें कह सकते हैं क्योंकि डिवाइडेड बाय 32 है। ठीक है, इसको इक्वेशन नंबर 2 कह देंगे। अब हमने क्या करना है, इक्वेशन नंबर 1, कंपेयरिंग इक्वेशन नंबर 1 एंड 2 वी गेट 1 ओवर सिग्मा k इज इक्वल टू 1 ओवर सिग्मा अंडर रूट 2 पाई इज इक्वल टू 1 ओवर 4 अंडर रूट 2 पाई। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, सेकंड में क्या होगा कि म्यू इज इक्वल टू 6 एंड सिग्मा इज इक्वल टू 4। अब यहाँ पे देखें सेकेंड इक्वेशन से आप देख सकते हैं कि म्यू की वैल्यू क्या है, 6 है, और सिग्मा क्या आ गया, 4 आ गया। ठीक है, तो इससे हमने म्यू और सिग्मा की वैल्यू जो है वो कैलकुलेट कर ली है। नेक्स्ट एग्जाम्पल है 14.4 एग्जाम्पल है, और इसमें क्या पूछा गया है, इन अ नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन द सेकेंड मोमेंट अबाउट द मीन इज 15, फाइंड द थर्ड एंड फोर्थ मोमेंट अबाउट द मीन।
और सेकंड इसमें बीटा 1 एंड बीटा 2 वो फाइंड करना है। ठीक है, अब इसमें देखें सेकंड मोमेंट अबाउट मीन उसने बताया है, यानी μ2 वो इक्वल है 15 के। ठीक है, जो कि सिग्मा स्क्वायर के इक्वल, हम कहते हैं कि सिग्मा स्क्वायर के इक्वल होता है, और वो है हमारे पास 15 μ2। तो μ3 तो हमारे पास 0 होगा। ठीक है, μ2 उसने खुद, μ1 भी 0 होगा, μ2 उसने खुद 15 बताया हुआ है, और μ3 0 होगा, और μ4 जो है वो इक्वल होता है 3 μ2 स्क्वायर। तो μ2 हमें 15 दिया हुआ है। ठीक है, तो μ2 की जगह उसकी वैल्यू पुट कर देंगे, तो ये हमारे पास आ जाएगा μ4 हमारे पास आ जाएगा 675। अब हमने बीटा 1 और बीटा 2 फाइंड करना है। ठीक है, तो बीटा 1 हमारे पास इक्वल होता है μ3 स्क्वायर डिवाइडेड बाय μ2 क्यूब। ठीक है, और μ3 हमारे पास ज़ाहिर है ऑड ऑर्डर मोमेंट 0 होते हैं नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन में, तो 0 हो जाएगा बीटा 1, और बीटा 2 जो है इट इज़ इक्वल टू μ4 ओवर μ2 स्क्वायर। अब μ4 ओवर μ2 स्क्वायर, μ4 किसके इक्वल होता है 3 μ2 स्क्वायर डिवाइडेड बाय μ2 स्क्वायर। ठीक है, तो μ2 स्क्वायर से कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पे आंसर क्या आ जाएगा आपके पास 3 आ जाएगा, तो बीटा 2 इक्वल टू 3 है। 14.5 example. In a normal distribution, the mean and standard deviation are 0 and 1 respectively. Write down its equation and find the value of maximum ordinate correct to 2 decimal places. ठीक है, ये सारी एग्जाम्पल जो हैं बहुत ही इम्पोर्टेंट हैं, और ये पेपर में आ भी चुकी हैं, और ये शॉर्ट क्वेश्चंस में आती हैं। ठीक है, ये वाली एग्जाम्पल भी। तो इसमें देखें इक्वेशन जो है हमारे पास नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन की डेंसिटी फंक्शन जो है वो इक्वल है y इज इक्वल टू 1 ओवर सिग्मा अंडर रूट 2 पाई ई रेस टू पावर माइनस हाफ x माइनस म्यू ओवर सिग्मा होल स्क्वायर व्हेन म्यू इज इक्वल टू 0 एंड सिग्मा इज इक्वल टू 1 इन स्टैंडर्डाइज नॉर्मल या स्टैंडर्ड नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन में म्यू जो है वो 0 होता है, और स्टैंडर्ड डेविएशन सिग्मा जो है वो इक्वल टू 1 होगा अगर। ठीक है, यहाँ पे जो क्वेश्चन में उन्होंने बताया है, अगर म्यू 0 पुट करें और सिग्मा 1, तो हमारे पास इक्वेशन क्या आ जाएगी यहाँ पे 1 ओवर अंडर रूट 2 पाई ई रेस टू पावर माइनस एक्स स्क्वायर बाई 2 हमारे पास रह जाएगा। ठीक है, सिग्मा 1 हो जाएगा और म्यू 0। फिर हम क्या करते हैं कि अगर हम कहते हैं कि x जो है वो इक्वल टू म्यू, सिंस द मैक्सिमम ऑर्डिनेट इज एट x इज इक्वल टू म्यू, x इज इक्वल टू म्यू हो जाएगा, तो x की जगह यहाँ पे क्या हम ले लेंगे म्यू स्क्वायर बाय 2, और सिग्मा हमारे पास 1 होगा और म्यू 0 पुट करेंगे, तो फिर क्या हो जाएगा यहाँ पे हमारे पास 1 ओवर अंडर रूट 2 पाई रह जाएगा, ई रेस टू पावर 0 हो जाएगा जो कि इक्वल टू 1 होगा। ठीक है, तो यहाँ पे 1 ओवर अंडर रूट 2 पाई, तो पाई की हम जो वैल्यू है वो पुट कर देंगे 2 इंटू 3.14159, इसको मल्टीप्लाई करेंगे, अंडर रूट लेंगे, 1 को इस पे डिवाइड करेंगे, तो हमारे पास वैल्यू आ गई 0.39894। ठीक है, ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। द एग्जाम्पल 14.11 on page 133. This example is related to the topic normal frequency distribution. The example is, suppose the weights of 2000 male students are normally distributed with mean 155 pounds and standard deviation 20 pounds. Find the number of students with weights less than or equal to 120 pounds, between 120 and 130 pounds, between 150 and 175 pounds, greater than or equal to 200 pounds. सोल्यूशन देखें, म्यू हमारे पास है, वी हैव द वैल्यू ऑफ म्यू 155 पाउंड एंड सिग्मा इज इक्वल टू 20 पाउंड, एंड कैपिटल एन इज इक्वल टू 2000 मेल स्टूडेंट्स। ठीक है, एंड z इज इक्वल टू x माइनस म्यू ओवर सिग्मा. First we find the probability of
x is less than or equal to 120 pounds. Here x is equal to 120. We transform x into z, where z is equal to x minus mu or sigma. Here putting the value of x 120. 120 minus mu is equal to 155 divided by sigma 20. तो ये z की वैल्यू आ जाएगी -1.75. ठीक है, अब हम इसको लिख सकते हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ z इज लेस देन एंड इक्वल टू 1-1.75. हम डायग्राम बनाएंगे। डायग्राम में देखें, आपके पास जो z है, जो स्टैंडर्ड नॉर्मल वेरिएट है आपके पास z, उसका जो मीन होता है वो 0 होता है। ठीक है, तो ये और मैक्सिमम ऑर्डिनेट जहाँ पे है ये मीन को शो कर रहा है और ये 0 है। तो हमारी जो z की वैल्यू आई है वो है -1.75। तो हम म्यू से लेफ्ट पे नेगेटिव वैल्यूज होती हैं तो ये लेफ्ट पे आएगी। ठीक है, -1.75। और इससे जो लेस एरिया है, जो बिलो जो एरिया है, लेस एरिया इस पॉइंट से, वो ये है जिसको हमने शेड किया है। ठीक है, तो हम इसको लिख सकते हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ z लाइज बिटवीन -∞ to 0 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ -1, z लाइज बिटवीन -1.75 to 0। अब -∞ to 0 तक का जो एरिया है वो हमें पता है, इट इज इक्वल टू 0.5 -1.7 को 5 के कॉलम में देखेंगे तो हमारे पास वैल्यू आती है, साइन को इग्नोर करते हैं, 0.4599.5 में से इसको माइनस करेंगे तो हमारे पास जो एरिया आता है वो है 0.0401। अब हमने क्या करना है कि हमने नॉर्मल फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन फाइंड करनी है। तो उसकी डेफिनेशन में हमने बताया था कि हम n से डेंसिटी फंक्शन को मल्टीप्लाई करते हैं। अब हमारे पास जो वैल्यू आई है वो है 0.0401। ये एरिया हमने फाइंड किया है और इसको कैपिटल N जो कि 2000 है, क्वेश्चन में गिवन है हमें, उससे हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आंसर आता है 80.2 और 80। ठीक है, 80 स्टूडेंट्स। सेकेंड इसमें है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ x लाइज बिटवीन 120 एंड 130। 120 and 130. Here x1 is equal to 20, 120 and x2 is equal to 130. We transform x1 into z1 and x2 into z2. z1 is equal to x1 minus mu over sigma and x1 is 120. 120 minus mu is 155 and sigma is 20. तो ये हमारे पास वैल्यू आ जाएगी -1.75। और Z2 में Z2 इज इक्वल टू x2 माइनस म्यू और सिग्मा, तो x2 हमारे पास है 130 माइनस म्यू हमारे पास है 155 और सिग्मा हमारे पास है 20। 130 में से 155 माइनस करेंगे, 20 पे डिवाइड करेंगे तो हमारे पास Z2 आ जाएगा -1.25। और हम इसको लिख सकते हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ z लाइज बिटवीन -1.75 टू -1.25। ठीक है, अब हम डायग्राम देखते हैं। 0 हमारा क्या है, मीन है z का, z इज द स्टैंडर्ड नॉर्मल वेरिएट। ठीक है, अब हमारे पास जो वैल्यू है वो है -1.75 और -1.25। तो ये यहाँ पे लाइक आ रहे हैं और इन दो पॉइंट्स के दरमियान जो एरिया है वो हमें चाहिए, उसको हमने शेड कर दिया है। ठीक है, तो अब हम इसको लिख सकते हैं कि प्रोबेबिलिटी ऑफ z लाइज बिटवीन -1.75 टू 0। ठीक है, माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ z लाइज बिटवीन -1.25 टू 0। -1.25 टू 0 का ये जो अनशेडेड एरिया है, अगर ये हम निकाल देते हैं इस पूरे एरिया में से तो ये शेडेड एरिया हमारे पास आ जाएगा। अब 1.7 को साइन को इग्नोर करेंगे, 1.7 जो z के कॉलम में आप आ जाएं, नीचे टेबल को सामने रखें तो
आपने देखना है 5 के कॉलम में 1.7 के सामने आपकी वैल्यू आ रही है 0.4599 माइनस 1.2 को आपने 5 के कॉलम में देखना है। 1.2 के सामने 5 के कॉलम में वैल्यू आ रही है 0.3944। इसमें से इसको माइनस करेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाता है 0.0655। ठीक है, अब इसको हमने 2000 n जो है हमें गिवन है उससे हम मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 131। थर्ड जो पार्ट है वो है प्रोबेबिलिटी ऑफ x लाइज बिटवीन 150 एंड 175। हेयर x1 इज इक्वल टू 150 एंड x2 इज इक्वल टू 175। ठीक है, तो z1 ट्रांसफॉर्म x1 इंटू z1 एंड x2 इंटू z2। तो z1 किसके इक्वल होगा, x1 माइनस म्यू ओवर सिग्मा, और x1 है हमारे पास 150 माइनस म्यू है 155 डिवाइडेड बाय सिग्मा है 20। तो हमारे पास z1 आ जाएगा माइनस 0.25 और z2 की वैल्यू हमारे पास इसी तरह से x2 की वैल्यू पुट करेंगे, हमारे पास आ जाएगी 1। ठीक है, हम इसको अब लिख सकते हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ z लाइज बिटवीन माइनस 0.25 टू 1। ठीक है, अब हमने डायग्राम देखना है। माइनस 0.25 ये हमारा जो नेगेटिव वैल्यू है वो लेफ्ट साइड पे आएगी म्यू के, म्यू जो कि 0 है, और जो पॉजिटिव वैल्यू होगी वो हमारे राइट साइड पे आएगी। और हमने ये भी पीछे पढ़ा है कि ये जो अगर एक प्रोबेबिलिटी पॉजिटिव में है और एक नेगेटिव में, तो फिर हम दोनों की जो प्रोबेबिलिटीज़ होंगी उनको हम ऐड करेंगे। ठीक है, अब इसको हम लिख सकते हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ z लाइज बिटवीन माइनस 0.25 टू 0 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ z लाइज बिटवीन 0 टू 1। ठीक है, 0.2 को 5 में हम टेबल में देखेंगे। 0.2 के सामने 5 के कॉलम में जो वैल्यू है वो है 0.0987 प्लस आपकी 1.0 को 0 में देखेंगे। 1.0 के सामने 0 के कॉलम में देखेंगे तो वैल्यू आती है 0.3413 और ये प्लस करने से आंसर आ जाएगा 0.4400। और फिर इसी एरिया को हमने मल्टीप्लाई करना है कैपिटल M से, जो कि 2000 है, उससे मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आंसर आता है 880। फोर्थ पार्ट है इसका, प्रोबेबिलिटी ऑफ x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 200। ठीक है, और x की वैल्यू यहाँ पे 200 है तो z क्या होगा, x माइनस म्यू ओवर सिग्मा। x है 200 माइनस म्यू है 155 और सिग्मा है 20। ठीक है, तो ये वैल्यू आ जाएगी 2.25। अब इसको हम लिख सकते हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ z इज ग्रेटर देन 2.25 एंड इट इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ z लाइज बिटवीन 0 टू इंफिनिटी माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ z लाइज बिटवीन 0 टू 2.25। अब हमें पता है कि 0 टू इन्फिनिटी तक का जो एरिया है वो 0.5 के इक्वल है। माइनस 2.2 को 5 के कॉलम में देखेंगे तो उसके सामने जो वैल्यू आती है वो है 0.478। 0.5 में से इसको माइनस करेंगे तो हमारे पास वैल्यू आती है 0.0122। अब इस वैल्यू को हम मल्टीप्लाई करेंगे 2000 के साथ तो हमारे पास आंसर आता है 24.4 or 24. Now question 14.1 from your exercise. Question is, in a normal distribution mu is equal to 30 and sigma is equal to 5. Find the 2 points containing the middle 68% of the area, the middle 95% of the area, almost all the area, the middle 75% of the area. Here mu is equal to 30 and sigma is equal to 5. Number 1 is find the middle 68% of the area. अब इसमें देखें
हमारे पास क्या होता है कि 68% एरिया अभी हमने जो प्रॉपर्टीज में पढ़ा है वो किस में होता है, म्यू प्लस माइनस सिग्मा में। ठीक है, तो म्यू प्लस माइनस सिग्मा इज इक्वल टू, म्यू की वैल्यू है 30 प्लस माइनस सिग्मा की वैल्यू है 5, तो ये रेंज आ जाएगी 25 एंड 35। ठीक है, म्यू प्लस सिग्मा और म्यू माइनस सिग्मा आ जाएगा 25 एंड म्यू प्लस सिग्मा इट इज इक्वल टू 35। सेकेंड पार्ट है द मिडल 95% ऑफ द एरिया। ठीक है, तो 95% कहाँ पे लाई करता है, प्रॉपर्टी के थ्रू, अकॉर्डिंग टू द प्रॉपर्टी ऑफ नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन, म्यू प्लस माइनस 2 सिग्मा। ठीक है, म्यू प्लस माइनस 2 सिग्मा इज इक्वल टू 30 प्लस माइनस 2 इंटू 5। तो ये हमारे पास आंसर आ जाएगा, माइनस करने से 20 और प्लस करने से हमारे पास आंसर आएगा 40। ठीक है, थर्ड पार्ट इसमें है ऑलमोस्ट ऑल द एरिया। According to the property of normal distribution, the almost all the area lies between 3 mu plus minus 3 sigma। ठीक है, तो mu plus minus 3 sigma is equal to 30 plus minus 3 into 5। ठीक है, माइनस करेंगे तो हमारे पास 15 आ जाएगा और प्लस करेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 45। सेकेंड क्वेश्चन है 14.2 question. In a normal distribution, the first moment about 10 is 40 and the fourth moment about 50 is 48. What is the mean and standard deviation of the distribution? ये भी important question है, ये short question में आता है। ठीक है, इस तरह के question जो हैं वो आ चुके हैं। Here we are given that expected value of x minus a is equal to first moment about origin। ठीक है, फर्स्ट मोमेंट अबाउट ओरिजिन इसके ये एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एक्स माइनस ए के इक्वल है। ठीक है, जो कि इक्वल है समीशन एक्स माइनस ए डिवाइडेड बाय एन। ठीक है, अब इस पे एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एक्स माइनस ए हमारे पास क्या है, यहाँ पे हमें गिवन है और वो क्या है 10 है, अबाउट 10। ठीक है, और इसका वैल्यू क्या दी हुई है, 40 दी हुई है। ठीक है, तो एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ x माइनस 10 हमारे पास क्या है, इक्वल टू 40 है। और एक्सपेक्टेशन जब इस पे मल्टीप्लाई करेंगे तो एक्सपेक्टेड वैल्यू ये इक्वल हो जाएगा एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ x माइनस एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ 10। तो एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ 10 जो है वो कांस्टेंट है, कांस्टेंट की एक्सपेक्टेशन उस कांस्टेंट के इक्वल होती है। ठीक है, तो ये आ जाएगा एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ x माइनस 10 इज इक्वल टू 40। अब एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ x को इधर रहने देंगे और माइनस 10 को उस साइड पे ले जाएंगे तो ये प्लस 10 हो जाएगा। ठीक है, तो एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ x इज इक्वल टू 40 प्लस 10, ये हमारे पास 50 आ जाएगा एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ x, जो कि म्यू के इक्वल होती है। फोर्थ मोमेंट अबाउट ओरिजिन वो इक्वल होती है एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ x माइनस ए रेज टू पावर 4 एंड इट इज इक्वल टू एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ x माइनस 50 होल रेज टू पावर 4 इज इक्वल टू 48। ठीक है, अब इसमें हमारे पास जो a है वो सेकंड उसमें वो दिया हुआ है 50। ठीक है, मोमेंट अबाउट 50, फोर्थ मोमेंट अबाउट 50 और उसकी वैल्यू गिवन है 48। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा, म्यू 4 हमारे पास क्या आ जाएगा, एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ x माइनस म्यू रेज टू पावर 4, क्योंकि म्यू हमारे पास 50 है, म्यू की जगह म्यू यहाँ पे 50 है, x माइनस 50, तो 50 हमारे पास म्यू आ रहा है तो इसकी जगह म्यू पुट कर देंगे। ठीक है, तो रेज टू पावर 4 और ये इक्वल है किसके, 48 के, और इसको हम म्यू 4 भी कह सकते हैं। लेकिन बट इन नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन म्यू 4 इज इक्वल टू 3 सिग्मा रेज टू पावर 4 एंड इट इज इक्वल टू 48। 3 सिग्मा रेज टू पावर 4 इज इक्वल टू 48। sigma raised to power 4 is equal to 48 divided by 3 and it is equal to 16. Taking square root on both sides, sigma square is equal to 4 and sigma is equal to 2। सिग्मा इज इक्वल टू 2। अब यहाँ पे म्यू की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई थी 50 और सिग्मा हमारे पास आ गया है 2।
एग्जाम्पल क्वेश्चन है एक्सरसाइज से 4.13, ठीक है। इन अ नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन द लोअर एंड अपर क्वार्टाइल्स आर रेस्पेक्टिवली 8 and 17, फाइंड द मीन एंड स्टैंडर्ड डेविएशन। ये भी इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन पेपर में आ चुका है इस तरह का। The parameters of normal distribution are mu and sigma. Here we have given Q1 is equal to the lower quartile and it is equal to 8, and upper quartile Q3 is equal to 17. According to the property of normal distribution, Q1 is equal to mu minus 0.6745 of its sigma, और इसकी वैल्यू हमें बताई हुई है 8। इसको हम इक्वेशन नंबर 1 कहेंगे। Q3 upper quartile, it is equal to mu plus 0.6745 of sigma, और इसकी वैल्यू हमें बताई हुई है 17। ठीक है, अब हमने सब्ट्रैक्ट करना है, सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 2 फ्रॉम इक्वेशन 1। तो यहाँ पे देखें म्यू जो है वो सब्ट्रैक्ट नहीं करेंगे, इसको ऐड करेंगे, क्योंकि सब्ट्रैक्ट करें तो साइन चेंज होते हैं, लेकिन यहाँ पे हमने साइन चेंज नहीं किए, यहाँ पे हम इसको ऐड कर रहे हैं। तो ऐड करने से देखें, एक माइनस की वैल्यू एक प्लस की है 0.6745 सिग्मा, ये कैंसिल हो जाएगा और 2 म्यू हो जाएगा। 1 म्यू प्लस 1 म्यू, ये हमारे पास 2 म्यू आ जाएगा, और 8 प्लस 17 ये आ जाएगा 25। 2 म्यू इज इक्वल टू 25 हो जाएगा। तो म्यू इज इक्वल टू 25 डिवाइडेड बाय 2, ये आंसर आ जाएगा 12.5। क्वेश्चन 14.13 ये हम डिस्कस कर रहे थे, पीछे मैंने इसका बताया कि म्यू की वैल्यू जो है वो हमारे पास 25 डिवाइडेड बाय 2 से 12.5 आ जाती है। ठीक है, अब हम इस म्यू की वैल्यू को किसी एक इक्वेशन में, इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर देते हैं, तो हमारे पास सिग्मा की वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, इसको सॉल्व करने से हमारे पास सिग्मा की वैल्यू आ गई 0.6745। ये सिग्मा इज इक्वल टू, ये हमारे पास आ गया 12.5 माइनस 8। ठीक है, 12.5 माइनस 8 माइनस करने से 4.5 आ जाएगा, और सिग्मा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 4.5 डिवाइडेड बाय 0.6745। तो ये हमारे पास सिग्मा की वैल्यू आ जाएगी 6.67। नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रॉम एक्सरसाइज इज 14.16, और ये रिलेटेड है ये क्वेश्चन नॉर्मल फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन से। ठीक है, तो क्वेश्चन है, इन अ सर्टेन एग्जामिनेशन 2000 स्टूडेंट्स अपीयर्ड, the average marks obtained were 50% and the standard deviation was 5%. How many students do you expect to obtain more than 60% marks, between 40% and 50% marks, supposing the marks to be distributed normally? The area between z is equal to 0 and z is equal to 2 is 0.4772। एरिया उन्होंने खुद हमें बता दिया है, अब हमें टेबल से नहीं देखना पड़ेगा। ठीक है, तो कैपिटल एन यहाँ पे क्या है 2000 स्टूडेंट्स, और म्यू क्या है 50%, और सिग्मा दिया हुआ है यहाँ पे 5%। तो सबसे पहला जो पार्ट है, हमने क्या फाइंड करना है, मोर देन 60% मार्क्स, students get more than 60% marks. Here x is equal to 60 and z is equal to x minus mu और sigma। तो क्या होगा, x is equal to 60 minus mu है 50 divided by sigma, sigma है 5, तो ये z की वैल्यू आ जाएगी 2। ठीक है, तो हम अब इसको लिख सकते हैं, probability of z is greater than 2। डायग्राम में देखें, हमारे पास पॉजिटिव वैल्यू है, तो राइट साइड म्यू के राइट साइड पे ये जो है लाई करेगी, और इससे अबव एरिया जो कि हमने शेड किया हुआ है ये हमने फाइंड करना है। तो इसको हम लिख सकते हैं, प्रोबेबिलिटी ऑफ z लाइज बिटवीन 0 टू इंफिनिटी माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ z लाइज बिटवीन 0 टू 2, यानी अनशेडेड एरिया इस पूरे हाफ में से हम माइनस कर दें तो हमारे पास शेडेड एरिया जो कि रिक्वायर्ड है वो हमारे पास आ जाएगा।
हमें पता है कि 0 to इन्फिनिटी तक का एरिया जो है इट इज़ इक्वल टू 0.5। तो इसमें से हम 2.0 को 0 में देखेंगे टेबल में, ठीक है। और ये वैल्यू उसने खुद भी हमें दी हुई है, ठीक है। 0 to 2 तक की वैल्यू वो है 0.4772। तो 0.5 में से इसको माइनस करेंगे तो हमारे पास जो एरिया आता है वो है 0.0228। इसको हम कैपिटल N से मल्टीप्लाई करेंगे जो कि 2000 है हमारे पास। 2000 को हम इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 45.600 विच इज़ अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू 46। क्योंकि स्टूडेंट्स हैं तो हम इसको होल नंबर में लिखेंगे। सेकंड इसमें है between 40% and 50% marks, ठीक है। Here probability of x lies between 40 and 50. Here x1 is 50 and x2 is equal to 50. x1 is equal to 40 and x2 is equal to 50. x1 transformed into z1 and x2 transformed into x2 z2, ठीक है। z1 हमारे पास क्या है, किसके इक्वल है, x1 माइनस म्यू डिवाइडेड बाय सिग्मा। x1 द वैल्यू ऑफ x1 इज 40, 40 माइनस 50 डिवाइडेड बाय 5, ये इक्वल टू -2 आ जाएगा। और z2 हमारे पास आ जाएगा 50 माइनस 50 डिवाइडेड बाय 5 इक्वल टू 0 आ जाएगा, ठीक है। तो माइनस में वैल्यू है, लेफ्ट साइड पे म्यू के लाई करेगी, ठीक है। और -2 to 0 तक का हमने इन दो पॉइंट्स के दरमियान एरिया जो है वो फाइंड करना है। अब इसको हम लिख सकते हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ z लाइज बिटवीन -2 to 0। और ये एरिया हमारे पास गिवन है जो कि इक्वल टू किसके है, 0.4772, ठीक है। इसको हम 2000 से कैपिटल N से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आंसर आता है 954.400 विच इज़ अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू 954। क्योंकि नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हैं तो हम उसको होल नंबर में लिखेंगे, पॉइंट्स में नहीं लिख सकते। बी पार्ट है इसी क्वेश्चन का और ये क्वेश्चन है, इफ द हाइट ऑफ 300 स्टूडेंट्स are normally distributed with mean 68.0 inches and standard deviation 3.0 inches. How many students have heights greater than 72 inches and between 65 and 71 inches inclusive? अब इसमें देखें, म्यू हमारे पास है 68.0, सिग्मा है 3.0 एंड z इज इक्वल टू x माइनस म्यू ओवर सिग्मा। म्यू हमारे पास क्या है, यहाँ पे बी पार्ट है 14.16 का, और म्यू इसमें है 68.0 और सिग्मा है 3.0। z जो है वो x माइनस म्यू और सिग्मा के इक्वल है। हमने फाइंड करना है प्रोबेबिलिटी ऑफ x इज ग्रेटर देन 72। हेयर x इज इक्वल टू 72, हम x को z में ट्रांसफॉर्म करेंगे x माइनस म्यू और सिग्मा, तो ये हमारे पास वैल्यू आ जाएगी 1.33, ठीक है। तो हम इसको लिख सकते हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ z इज ग्रेटर देन 1.33। डायग्राम इसकी पॉजिटिव वैल्यू है, म्यू के राइट साइड पे लाई करेगी और इससे ग्रेटर एरिया जो कि हमने शेड किया हुआ है इस पॉइंट से ऊपर ग्रेटर जो एरिया है वो हमने शेड कर दिया है प्लस इन्फिनिटी तक, ठीक है। हम इसको लिख सकते हैं कि प्रोबेबिलिटी ऑफ z लाइज बिटवीन 0 to इन्फिनिटी माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ z लाइज बिटवीन 0 to 1.33, यानी 0 to इन्फिनिटी तक के एरिया में से 0 to 1.33 का एरिया जो अनशेडेड है, अगर उसको हम माइनस कर देते हैं तो हमारे पास जो शेडेड एरिया है जो कि रिक्वायर्ड एरिया है वो हमारे पास आ जाएगा, ठीक है। और हमें पता है कि 0 से इन्फिनिटी तक का एरिया जो है ये 0.5 के इक्वल है, और 1.3 को 3 में देखेंगे तो हमारे पास वैल्यू आ जाएगी टेबल में 0.4082। 2.5 में से इसको माइनस करेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा 0.0918। और ये नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हैं, इनको उनकी हाइट्स हम देख रहे हैं, तो इसको कैपिटल N से मल्टीप्लाई करेंगे जो कि गिवन है 300, तो ये हमारे पास आ जाएगा 27.54 जो कि अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू 28 होगा। प्रोबेबिलिटी ऑफ x नेक्स्ट हमने फाइंड करना है। प्रोबेबिलिटी ऑफ x लाइज बिटवीन 65 एंड 71 इंक्लूसिव। इंक्लूसिव का मतलब होता है कि दोनों ये रेंज की ये वैल्यूज जो हैं 65 भी 71 भी इसमें शामिल है, इक्वालिटी का साइन हम लगाते हैं।
हालांकि कंटिन्यूअस में ये नहीं है, इसमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ठीक है। डिस्क्रीट में इससे ज़्यादा फ़र्क पड़ता है कि इंक्लूसिव अगर लिखा है तो हम वो जो वैल्यूज़ होंगी, वो लिमिट्स होंगी, वो हम उसमें शामिल करेंगे, क्योंकि प्रोबेबिलिटीज़ हम ऐड करते हैं। यहाँ पे जो है हम इसकी प्रॉपर्टीज़ में पढ़ चुके हैं कि इससे हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता। हेयर x1 इज 65 एंड x2 इज इक्वल टू 71। x1 को हम z1 में ट्रांसफॉर्म करेंगे तो वो हमारे पास वैल्यू आती है 65 माइनस 68 डिवाइडेड बाई 3 माइनस 1 के इक्वल। और इसी तरह से x2 को हम z2 में ट्रांसफॉर्म करेंगे तो हमारे पास वैल्यू आती है 71 माइनस 68 डिवाइडेड बाई 3 इक्वल टू 1 आती है, ठीक है। तो हम इसको लिख सकते हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ z लाइज बिटवीन -1 एंड 1, ठीक है। हम इसको डायग्राम जो है इसमें देखें, -1 हमारी लेफ्ट साइड पे लाई करेगी और 1 जो है वो राइट साइड पे लाई करेगी। तो हमारी अगर दोनों तरफ जब प्रोबेबिलिटी लाई कर रही होती है तो हम इसकी प्रोबेबिलिटीज को प्लस करते हैं, ठीक है। तो हम इसको लिख सकते हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ z लाइज बिटवीन -1 to 0 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ z लाइज बिटवीन 0 to 1, ठीक है। अब 1.0 को साइन को इग्नोर करेंगे, 1.0 को 0 में देखेंगे तो हमारे पास जो वैल्यू आती है टेबल में वो है 0.3413 प्लस 1.0 को 0 में देखेंगे तो वही वैल्यू 0.3413 और इसको ऐड करेंगे तो हमारे पास आती है वैल्यू 0.6826, ठीक है। और इसको हम कैपिटल M से जब मल्टीप्लाई करेंगे तो ये वैल्यू आती है 204.78 और 205। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो है 14.17 एक्सरसाइज का क्वेश्चन है। और ये अभी हमने जो है पीछे एक एग्जांपल की थी जिसमें μ0 और सिग्मा 1 पुट करके हमने वो फाइंड किया था। तो यहाँ ये उसी तरह का बिल्कुल क्वेश्चन है इन अ नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन द मीन इज 5 एंड द वेरिएंस इज 1, राइट डाउन इट्स इक्वेशन एंड फाइंड द वैल्यू ऑफ मैक्सिमम ऑर्डिनेट करेक्ट टू 2 डेसिमल प्लेसेस, ठीक है। 2 डेसिमल प्लेसेस तक आपने इसके जो है वो आंसर लिखना है। अब क्या है इसमें म्यू हमारे पास जो हमें गिवन है वो 5 है और सिग्मा यानी वेरिएंस जो गिवन है वो 1 है, तो सिग्मा भी हमारे पास इक्वल टू 1 हो जाएगा, ठीक है। तो अंडर रूट ले लेंगे, 1 का अंडर रूट 1 ही होगा, सिग्मा इज आल्सो इक्वल टू 1, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पास जो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन का जो डेंसिटी फंक्शन है वो इक्वल है y इज इक्वल टू 1 ओवर सिग्मा अंडर रूट 2 पाई ई रेस टू पावर -12 x माइनस म्यू और सिग्मा होल स्क्वायर, ठीक है। तो सिग्मा 1 पुट करेंगे और म्यू की जगह हम उसकी वैल्यू 5 इसमें पुट करेंगे तो हमारे पास ये आंसर आ जाएगा, ये इक्वल हो जाएगा 1 ओवर अंडर रूट 2 पाई ई रेस टू पावर -12 x माइनस 5 होल स्क्वायर। फिर हम कहते हैं द वैल्यू ऑफ द मैक्सिमम ऑर्डिनेट ऑफ द कर्व इज x इज इक्वल टू म्यू, कि x जो है वो इक्वल टू म्यू हो जाएगा और म्यू की वैल्यू क्या है 5 है जो कि गिवन है। तो 5 माइनस 5 क्या हो जाएगा 0 और e की पावर सारी 0 हो जाएगी और किसी भी चीज़ की पावर जब 0 होती है तो वो इक्वल टू 1 हो जाता है, ठीक है। तो हमारे पास सिर्फ जो टर्म रह जाएगी वो है 1 ओवर अंडर रूट 2 पाई, ठीक है। 2 इंटू पाई की वैल्यू हम इसमें पुट कर देंगे 3.14, उसमें पुट करके वैल्यू उसको मल्टीप्लाई करेंगे, उसका अंडर रूट लेंगे, 1 को उस पर डिवाइड करेंगे तो हमारे पास वैल्यू आती है 0.39, ठीक है। हमने 2 डेसिमल प्लेसेस तक लेना है तो 0.39 यहाँ तक लेंगे और अगर उससे ज़्यादा लेना है तो फिर 38989 उतने तक हम पूरा लिख सकते हैं, ठीक है। इसके बाद इसका बी पार्ट है, इसी क्वेश्चन का जो है बी पार्ट है और वो है सपोज द वेट्स ऑफ 1000 मेल स्टूडेंट्स आर नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड विद मीन 160 पाउंड एंड स्टैंडर्ड डेविएशन 20 पाउंड्स, फाइंड द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स विद वेट्स लेस देन 100 पाउंड्स बिटवीन 170 एंड 175 पाउंड्स एंड ग्रेटर देन 210 पाउंड्स, ठीक है। तो ये हमने फाइंड करने हैं।
एन कैपिटल एन इसमें कितना दिया हुआ है 1000 है, म्यू हमें दिया हुआ है 160 और सिग्मा की वैल्यू है 20। फर्स्ट हमने जो फाइंड करना है लेस देन 100 पाउंड्स, ठीक है, वेट लेस देन 100 पाउंड्स, प्रोबेबिलिटी ऑफ x इज लेस देन 100, हेयर x इज इक्वल टू 100, तो x को z में ट्रांसफॉर्म करेंगे, z इक्वल टू x माइनस म्यू ओवर सिग्मा है, तो x की वैल्यू यहाँ पे 100 माइनस म्यू है 160 ओवर सिग्मा है 20, तो ये z की वैल्यू आ जाएगी -3। अब हम इसको लिख सकते हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ z इज लेस देन -3। अब -3 जो है ये नेगेटिव वैल्यू है, तो म्यू के लेफ्ट साइड पे आएगी और इससे बिलो एरिया हमने, इससे लेस एरिया हमने फाइंड करना है, जो कि हमने शेड कर दिया। अब हम इसको लिख सकते हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ z लाइज बिटवीन -∞ to 0 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ z लाइज बिटवीन -3 to 0, यानी ये अनशेडेड एरिया जो है इस पूरे हाफ में से निकाल देंगे तो हमारे पास शेडेड एरिया आ जाएगा, ठीक है। अब हमें पता है कि -∞ से 0 तक का ये एरिया जो है पूरा, ये हाफ जो है ये हमारे पास 0.5 के इक्वल होता है, और हमने 3.0 को 0 में देखेंगे तो हमारे पास जो एरिया आएगा टेबल से वो है 0.4987, 0.5 में से इसको माइनस करेंगे तो हमारे पास जो एरिया आएगा वो है 0.0013, और इसको 1000 से हम मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा आंसर 1.3, जो कि अप्रोक्सीमेट इक्वल टू 1 ही उसको हम लेंगे, क्योंकि यहाँ भी हमने नंबर ऑफ स्टूडेंट्स का वेट हम देख रहे हैं, तो नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हमने बताने हैं। सेकंड इसमें है बिटवीन 170 एंड 175, ठीक है। प्रोबेबिलिटी ऑफ x लाइज बिटवीन 170 एंड 175, हेयर x1 इज इक्वल टू 170 एंड x2 इज इक्वल टू 175, वी ट्रांसफॉर्म x1 इंटू z1 एंड x2 इंटू z2, ठीक है। z1 इक्वल टू x1 माइनस म्यू ओवर सिग्मा, x1 की वैल्यू इधर पुट करेंगे 170 माइनस म्यू है 160 और सिग्मा 20, तो z1 हमारे पास आ जाएगा 0.50, और z2 का फार्मूला क्या है x2 माइनस म्यू ओवर सिग्मा, और x2 हमारे पास यहाँ पे गिवन है 175 माइनस म्यू है 160 और सिग्मा है 20, तो हमारे पास ये वैल्यू आ जाएगी 0.75, ठीक है। तो अब हम इसको लिख सकते हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ z लाइज बिटवीन 0.50 टू 0.75, और ये दोनों पॉजिटिव वैल्यूज हैं, देखें डायग्राम में राइट साइड पे ये दोनों लाई आ रही हैं, और इन दोनों पॉइंट्स के दरमियान जो कि शेडेड है हमने शेड कर दिया उसको, और उसमें हम देखेंगे कि इन दो पॉइंट्स के दरमियान जो एरिया है ये हमने फाइंड करना है। तो हम इसको लिख सकते हैं यहाँ पे प्रोबेबिलिटी ऑफ z लाइज बिटवीन 0 to 0.75 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ z लाइज बिटवीन 0 to 0.50, ठीक है। अब हमने 0.7 को 5 के कॉलम में देखना है टेबल में, तो हमारे पास जो एरिया आता है वो है 0.2734 माइनस 0.5 को 0 के कॉलम में देखेंगे तो वो वैल्यू आती है 0.1915, इसको माइनस करेंगे तो ये हमारे पास एरिया आ जाएगा 0.0819, ठीक है। और इसको हम फिर कैपिटल N से मल्टीप्लाई करेंगे जो कि इक्वल टू 1000 है, मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 82, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हमारे पास आ जाएंगे 82, जिनका वेट जो है वो किसके दरमियान था 170 और 175 के दरमियान था, उसका एरिया हमने फाइंड कर दिया। अच्छा, नंबर 3 है ग्रेटर देन 210 पाउंड्स, यानी प्रोबेबिलिटी ऑफ x इज ग्रेटर देन 210, हेयर x इज इक्वल टू 210 एंड वी ट्रांसफॉर्म x इंटू z इज इक्वल टू x माइनस म्यू ओवर सिग्मा, 210 माइनस 160 डिवाइडेड बाई 20, तो z की वैल्यू आ जाएगी 2.5, ठीक है। तो हम इसको लिख सकते हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ z इज ग्रेटर देन 2.5,
तो इसमें देखें टेबल में पॉजिटिव वैल्यू है तो मीन के राइट साइड पे लाई करेगी, और इससे ग्रेटर एरिया जो है इस पॉइंट से वो हमने यहाँ पे शेड किया हुआ है। ठीक है, तो हम इसको लिख सकते हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ z लाइज बिटवीन 0 टू इन्फिनिटी माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ z लाइज बिटवीन 0 टू 2.5, यानी 0 टू इन्फिनिटी तक का जो हाफ है हमारे पास जो एरिया है उसमें से हम ये अनशेडेड एरिया 0 टू 2.5 ये हम माइनस कर दें तो हमारे पास ये शेडेड एरिया जो कि रिक्वायर्ड एरिया है ये आ जाएगा। ठीक है, अब 0 से इन्फिनिटी तक का एरिया हमें पता है इट इज़ इक्वल टू 0.5 एंड 2.5 को 0 में देखेंगे तो ये वैल्यू आती है 0.4938। इसको 0.5 में से माइनस करेंगे तो हमारे पास आंसर आ रहा है 0.0062, और फिर इसको हमने कैपिटल N से मल्टीप्लाई करना है जो कि 1000 है, और ये हमारे पास आ रहा है 6.2 एंड इट इज़ अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू 6। नंबर ऑफ स्टूडेंट्स। क्वेश्चन है 14.7, इसका ए पार्ट है ये 14.7 का। The diameters of bolts manufactured by a company are normally distributed with mean 0.25 inches and standard deviation 0.02 inches. A bolt is considered defective if its diameter is less than 0.2 or is greater than 0.28 inches. Find the percentage of defective bolts manufactured by the company. ठीक है, ये भी इम्पोर्टेंट है क्वेश्चन और थोड़ा सा डिफरेंट भी था, तो मैंने कहा ये आपको लाजमी करा दूं ताकि आपको मुश्किल ना हो। म्यू हमारे पास है यहाँ पे जो कि हमें गिवन है 0.25 और सिग्मा है 0.02 इंचेस। हमने फाइंड पहले क्या करना है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ x इज लेस देन 0.20। हेयर x इज इक्वल टू 0.20, x को z में ट्रांसफॉर्म करेंगे, x की वैल्यू 0.20 माइनस म्यू है 0.25 और सिग्मा की वैल्यू है 0.02, तो ये z की वैल्यू आ जाएगी -2.5। ठीक है, हम इसको लिख सकते हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ z इज लेस देन -2.5। ठीक है, इसको डायग्राम में देखें, माइनस वैल्यू है लेफ्ट साइड पे ये लाई करेगी और इससे बिलो एरिया या इससे लेस एरिया हमने देखना है। तो इसको हम लिख सकते हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ z लाइज बिटवीन माइनस इन्फिनिटी टू 0 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ -2.5 टू z लाइज बिटवीन -2.5 टू 0। ठीक है, ये अनशेडेड एरिया इस पूरे हाफ में से हम माइनस कर लें तो हमारे पास रिक्वायर्ड एरिया आ जाएगा। अब हमें पता है कि माइनस इन्फिनिटी टू 0 तक का जो एरिया है वो इक्वल टू किसके होता है 0.5 के, तो फिर हम 2.5 को साइन को इग्नोर करेंगे माइनस साइन को, 2.5 को 5 के कॉलम में देखेंगे। ठीक है, तो ये हमारे पास एरिया आता है 0.4938। 5 में से इसको माइनस करेंगे तो हमारे पास आंसर आता है 0.0062 और इसको 0.0062। ठीक है, और नेक्स्ट उसमें है प्रोबेबिलिटी ऑफ x इज ग्रेटर देन 0.28। अब यहाँ पे x हमारे पास क्या है 0.28, इसको z में ट्रांसफॉर्म करेंगे। z का जो फार्मूला है वो है x माइनस म्यू ओवर सिग्मा। x की वैल्यू यहाँ पे 0.28 पुट करेंगे, म्यू की वैल्यू है 0.25, सिग्मा है 0.02। ठीक है, और हमारे पास z आ जाएगा 1.5, तो इसको हम लिख सकते हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ z इज ग्रेटर देन 1.5। ये पॉजिटिव वैल्यू है, राइट साइड पे जो है ये लाई करेगी और इससे ग्रेटर एरिया जिसको हमने शेड किया हुआ है ये आपको नजर आ रहा है डायग्राम में। ठीक है, अब प्रोबेबिलिटी ऑफ 0 टू इन्फिनिटी माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ z लाइज बिटवीन 0 टू 1.5, यानी इस पूरे हाफ में से अनशेडेड एरिया आप माइनस करेंगे तो आपके पास रिक्वायर्ड एरिया आ जाएगा। ठीक है, अब 0 टू इन्फिनिटी तक का एरिया हमें पता है 0.5 के इक्वल होता है। ठीक है, 0.5 के इक्वल है और उसमें से माइनस करेंगे किसको 1.5 को 0 में देखेंगे तो ये 0.4332 एरिया आता है, इसमें से माइनस करेंगे हमारे पास एरिया आ जाएगा 0.0668। अब देखें हमें जो उसने बताया हुआ है कि डायमीटर इज लेस देन 0.20 और का प्रोबेबिलिटी में क्या मतलब होता है प्लस।
ठीक है, एडिशन, प्रोबेबिलिटी ऑफ x इज ग्रेटर देन 0.28। अब हमने क्या करना है, प्रोबेबिलिटी ऑफ x इज लेस देन 0.20 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ x इज ग्रेटर देन 0.28, दोनों की जो हमने एरिया फाइंड किया है दोनों को प्लस कर लेंगे तो हमारे पास एरिया आ जाएगा टोटल 0.0730, और इसको फिर हमने 100 से मल्टीप्लाई करना है क्योंकि हमने परसेंटेज में आंसर देना है। ठीक है, परसेंटेज ऑफ डिफेक्टिव बोर्ड्स हमने फाइंड करनी है, तो 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास परसेंटेज आ जाएगी 7.3%। इसके बाद जो है नेक्स्ट क्वेश्चन है 14.9, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। Here mu is equal to 0 and sigma is equal to 1, the standard normal distribution। ठीक है, हमारे पास क्या है, स्टैंडर्ड नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन है। अब उन्होंने कहा फाइंड करें प्रोबेबिलिटी ऑफ x इज ग्रेटर देन 3। ठीक है, x इज ग्रेटर देन 3 में क्या है, z की वैल्यू क्या होगी, z इज ग्रेटर देन 3, इसका यही मतलब है। ठीक है, क्योंकि स्टैंडर्ड नॉर्मल वेरिएटर तो डायरेक्ट ये z की वैल्यू हमें गिवन है, तो z 3 है, तो हम क्या करेंगे, इसको लिख सकते हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ z लाइज बिटवीन 0 टू इंफिनिटी माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ z लाइज बिटवीन 0 टू 3। तो 0 टू इंफिनिटी तक का जो एरिया है 0.5 के इक्वल है, माइनस 3.0 को 0 में देखेंगे टेबल में तो हमारे पास वैल्यू आएगी 0.4987, और इसको 0.5 में से माइनस करने से आंसर आ जाएगा 0.0013। ठीक है, सेकेंड पार्ट है प्रोबेबिलिटी ऑफ x इज लेस देन -2, हेयर x इज इक्वल टू -2, z इज इक्वल टू x माइनस म्यू और सिग्मा। तो यहाँ पे इसका स्टैंडर्ड नॉर्मल वेरिएट है तो z को फाइंड करने की ज़रूरत ही नहीं है, ये डायरेक्ट हमें किसकी वैल्यू दी हुई है, z की वैल्यू दी हुई है। तो हम इसको लिख सकते हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ z इज लेस देन -2। ये मैंने आपको करके बताया है, लेकिन अगर नहीं करते तो इसको करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि उसने हमें बता दिया है कि ये जो है स्टैंडर्ड नॉर्मल वेरिएट है जिसका मीन जो है 0 है और सिग्मा जो है वो 1 है। तो स्टैंडर्ड नॉर्मल वेरिएट क्या है, z है, तो डायरेक्ट ये हमें z की वैल्यूज बताई हुई है। प्रोबेबिलिटी ऑफ z इज लेस देन -2, तो हम इसको लिख सकते हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ z लाइज बिटवीन -∞ टू 0 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ z लाइज बिटवीन -2 टू 0। ठीक है, अब -∞ टू 0 जो है वो हमें पता है 0.5 के इक्वल है एरिया, और 2.0 को 0 में देखेंगे तो हमारे पास एरिया आता है 0.4772, तो 0.5 में से माइनस करेंगे तो ये हमारे पास आंसर आ जाएगा 0.0228। नेक्स्ट जो पार्ट है इसमें वो है प्रोबेबिलिटी ऑफ x लाइज बिटवीन -2 टू 2। ठीक है, तो उसमें z जो है डायरेक्ट हम लिख सकते हैं कि z लाइज बिटवीन -2 एंड 2। ठीक है, तो इसमें दोनों तरफ प्रोबेबिलिटी लाई कर रही है तो ये क्या होंगी, प्रोबेबिलिटीज प्लस होंगी। प्रोबेबिलिटी ऑफ z लाइज बिटवीन -2 टू 0 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ z लाइज बिटवीन 0 टू 2। ठीक है, अब 2.0 को 0 में देखेंगे तो हमारे पास एरिया आता है 0.4772, और इसी तरह यहाँ भी 2.0 को 0 में देखेंगे तो हमारे पास वही वैल्यू आएगी 0.4772। तो इन दोनों को प्लस करने से हमारे पास आंसर आ जाएगा 0.9544। बी पार्ट इसका है इसी क्वेश्चन का, सपोज दैट द वीकली अर्निंग्स x आर नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड विद मीन 10.06 एंड वेरिएंस 2.64, फाइंड प्रोबेबिलिटी ऑफ x लाइज बिटवीन 8 एंड 12। म्यू हमें गिवन है 10.06 और सिग्मा स्क्वायर वेरिएंस हमें गिवन है 2.64, तो हम उसका अंडर रूट लेके तो हमारे पास क्या आ जाएगा, सिग्मा आ जाएगा। ठीक है, तो हमें फाइंड क्या करना है, प्रोबेबिलिटी ऑफ x लाइज बिटवीन
between 8 and 12. Here x1 is equal to 2 and x2 is equal to 12. So x1 transformed into z1 and x2 transformed into z2. z1 और z2 की वैल्यूज हम फाइंड कर लेंगे. z1 हमारे पास आ रहा है -1.27 और z2 हमारे पास आ रहा है 1.19. ठीक है, तो हम इसको लिख सकते हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ z लाइज बिटवीन -1.27 टू 1.19. ठीक है, और इसको हम लिख सकते हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ z लाइज बिटवीन -1.27 टू 0 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ z लाइज बिटवीन 0 टू 1.19. अब 1.2 को 7 में देखेंगे टेबल में वैल्यू, तो वो हमारे पास आती है 0.3980 प्लस 1.1 को 9 में देखेंगे तो वो हमारे पास वैल्यू आती है 0.3830. दोनों को प्लस करेंगे तो 0.781 ये हमारे पास टोटल एरिया आ जाए. स्टूडेंट्स, टुडेज होम टास्क क्वेश्चन नंबर 14.8 पार्ट ए from your exercise and question number 14.9 part C, question number 14.18, question number 14.19. Solve this question and send in your subject group.